Now, what we have seen in the country in the last few days is a travesty of parliamentary democracy. In fact, I did a bit of research. Never in the entire history of parliamentary democracy has any parliament in any country in the world ever suspended or expelled 150 people. That is the dubious record that has been set in our parliament this week. Everyone understands a basic principle of parliamentary democracy is the accountability of the Council of Ministers to the Parliament. When Parliament is in session, anything that happens, the government's duty is to come to Parliament and discuss it with them before going out. When the opposition called for a discussion on the security breach and requested that the Home Minister should come and speak to Parliament, as you all know, the Home Minister did not come. He was giving statements outside to the media, he was giving press interviews, but he was not prepared to speak inside Parliament. This is why the opposition protested. And I must say that the reaction has been completely disproportionate to the actual offence of protesting. The protest was for a very democratic parliamentary reason, which is to have the Home Minister come and initiate a discussion. The opposition had come to this winter session determined to cooperate fully in the functioning of Parliament. That's how the session began also. We wanted to participate in major debates on matters of national importance. But what we have seen, sadly, is the government has no interest in letting the opposition function responsibly in Parliament. We have seen, when we were in power, how important it was to accommodate the opposition's interests. If we had been in this position, we would have had the Home Minister come for 10 minutes. We would have had a discussion, maybe half an hour, 45 minutes. That would have diffused the crisis and we could have gone on. Instead, time has been wasted. The history of parliamentary democracy has been besmirched in our country. And today, we are leaving this House in the feeling that our entire parliamentary democracy has been betrayed and reduced to a travesty. That is the essential concern we have in this House. और खास में कोई भी देश कभी भी 150 सांसदों को बाहर किया नहीं, कोई भी देश में. तो जो हम देखें इस हफ्ते, ये तो ऐतिहासिक एक दुरुपयोग है हमारे इस सिस्टम के, और जो सरकार दिखा रहे हैं हमें कि उनको विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहिए, विपक्ष मुक्त राज्यसभा चाहिए. इस किस्म की राजनीति में लोकतंत्र का क्या होगा? यही हमारा. पिछले कुछ सत्रों से ये देखा जा रहा है कि जब भी विपक्ष देश की सुरक्षा से रिलेटेड, चाहे वो मणिपुर मुद्दा हो, चाहे वो अडानी मुद्दा हो, चाहे अभी सुरक्षा में चूक मुद्दा हो, इस पर सवाल करती है तो तुरंत सबको सस्पेंड कर दिया जा रहा है. और 150 से ज्यादा लोगों का सस्पेंड किया जाना ये लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है, जिसका हम विरोध करते हैं. और हमें लगता है कि विपक्ष पूरी तरह से इस देश को राजतंत्र की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है. इतने महत्वपूर्ण बिल आए पिछले सेशन में, आपने देखा उसमें न तो डिबेट हो पाया सही ढंग से, न तो कोई विरोध हो पाया. क्या ये सही है इस देश के लिए? 140 करोड़ जनता ये सोच रही है कि आप जो सबसे प्रोटेक्टेड जो पार्लियामेंट है उसकी सुरक्षा में चूक हो रही है, तो फिर देश की सुरक्षा को लेकर जनता कैसे आश्वस्त होगी जिसकी जिम्मेदारी आप लोगों को सौंपी गई है. इसलिए हम सभी इसका विरोध करते हैं. और इस तरह से अगर सस्पेंशन होगा तो अभी इतने इम्पोर्टेंट बिल्स आ रहे हैं. हम लोगों ने 4 तारीख से पूरा सहयोग किया, हर बिल पे हम लोगों ने बहस की, डिबेट हुआ, 0 आवर, स्पेशल मेंशन, क्वेश्चन आवर, सब कुछ हुआ और बहुत अच्छी तरह से सेशन चल रहा था. लेकिन 10 मिनट की मांग कि आकर माननीय गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखे देश की सुरक्षा में चूक के लिए, उस पर अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुन सकते तो फिर आप क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष को क्यों भेजा है जनता ने यहाँ पर? और हमें तो लगता है कि सत्ता पक्ष शायद यही चाहती है कि किसी भी बिल पर कोई डिबेट ना हो, कोई बहस ना हो, कोई विरोध ना हो और आसानी से बिल पारित हो जाए. पूरे परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में कह दी. महत्वपूर्ण ये है कि हम चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे. हम गृह मंत्री जी जो हर सवाल पे तत्पर रहते हैं, बाहर बयान देने को आतुर रहते हैं, जो उनका डोमेन नहीं है उस पे भी बोलते हैं. हमने कहा गृह मंत्री जी आके दोनों सदनों में, क्योंकि ये संसद की इमारत की चूक नहीं है सर. संसद है क्या? संसद 800 वैसे लोगों की जगह है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला मानना चाहिए. हमें कोई ये ना समझाए कि लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं. हकीकत हम सबको मालूम है. लेकिन हमने बस इतना मांगा और आपने इस स्केल पे जो सस्पेंशन किया,
शशि थरूर जी ने बिल्कुल कहा, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो लोकतंत्र की माँ कहते हैं ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब तो माँ को बीमार कर दिया आपने। माँ बीमार चल रही है। इस बीमार माँ को तीमारदारी की जरूरत है। और हम जैसे सांसद जिनको आप सस्पेंड करते हैं, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर तरीके हमको सुनने के काबिल नहीं है, हमारे पास क्या विकल्प? क्या प्लेकार्ड पहली बार दिखाया गया इस देश में? सारी रूलिंग और ऑब्जर्वेशन देखिए आप, 52 से लेके अब तक क्या बना रहे हैं आप इसको। आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कत्ल करने का की सुपारी ले ली और वो आप कर रहे हैं। आपको प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए और विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। आपको मुबारक हो मोदी जी, आप इस देश को सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन रूल की तरफ ले जा रहे हैं। और आप सोचते हैं आप ताली बजवाते रहेंगे। तालियां कब गालियों में तब्दील हो जाए शायद उन्हें पता है।